Good morning students, this is Rajesh Agarwal, your English teacher. Students, we were doing the poem, the ball poem, and in this section we have completed the introduction and theme of the poem, the summary of the poem and stanza first of the poem. In this lecture we will go to do the second stanza. So without wasting time, let us start stanza number second. The ball poem. No use to say, oh, there are other balls. An ultimately shaking grief. Grief का meaning क्या है? Sorrow. Fixes the boy. As he stands rigid. Rigid का meaning fixed. Fix हो जाना. Trembling. Trembling का meaning क्या है? Shaking. हिल जाना. Staring down. Staring माने घूरना. All his young days into the harbor. Harbor का meaning यहाँ पे port है, जहाँ पे बड़े बड़े ship रुकते हैं. Where his ball went, जहाँ उसकी बॉल चली गई. I would not intrude. Intrude का मतलब इन्वेड करना, किसी के बीच में दखलंदाजी देना. On him, a dime. Dime का मीनिंग 10 सेंट, एक तरह की करेंसी है, पैसा ही है. Another ball, यानी एक दूसरी बॉल जो है सिर्फ एक डाइम में यानी 10 सेंट में आ सकती है. Is worthless, ये कहना worthless है, useless है. Now he senses first responsibility. Let us see the explanation of this stanza. The poet says that there is no benefit of consoling the boy. Poet कहते हैं कि कोई benefit नहीं है उस boy को कंसोल करने में, सांत्वना देने में. By saying that, ये कह के he will get another ball, कि वो दूसरी बॉल ले सकता है. Because he has other balls too, क्योंकि बस दूसरी बॉल भी है. He says so because the boy is feeling very sad. ऐसा इसलिए कह रहा है कि boy जो है बड़ा sad फील कर रहा है. He is completely surrounded by sorrow. पूरी तरह से दुख से भरा हुआ है. He is sad, वो sad है. Because all the memories of the childhood days, उसके बचपन की जितनी भी यादें थी, went down the harbor with the ball. उस बॉल के साथ उस हार्बर में चली गई है. हार्बर वही पोर्ट, वो पानी का तालाब. Here the poet says that, यहाँ पोइट क्या कहते हैं? The boy is very sad, boy बड़ा sad है. As the ball which has now gone into the water, जो पानी में जा चुकी है, reminds him of those sweet memories. इससे उसको अपने पुराने दिनों की याद आ रही है. Of the times when he owned it, उस समय की याद आ रही जब ये बॉल उसके पास हुआ करती थी. This loss is unbearable. ये loss उसके लिए unbearable है, सहन नहीं कर सकता. And he is grief stricken, और वो दुख से भर गया है. The poet says that he cannot even tell the boy. Poet ये कहता है कि बच्चों को ये भी नहीं कह सकते to take some money from him in order to buy another ball, कि तो बच्चा जो है पोइट से कुछ पैसा ले ले और दूसरी बॉल खरीद के ले आए. He says so, वो ऐसा इसलिए कह रहा है because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. तो नई बॉल जो है वो सेम सेंस लेके नहीं आ सकती जो उस बच्चे को उस बॉल के साथ थी. Further, और आगे क्या कहता है? The poet says that the time has come for the boy, कि समय आ गया बच्चे के लिए, to learn the responsibility, कि बच्चा जिम्मेदारियों को समझे, of taking care of his things, कि अपनी चीज़ों को कैसे केयर की जाती है. Let us see what are the literary devices used in this stanza. Number first is repetition. Repetition का मीनिंग क्या होता है? जब एक ही वर्ड रिपीट होता है. यूज़ ऑफ वर्ड बॉल, आप देख सकते हैं स्टेंजा में बॉल वर्ड रिपीट हुआ है. एसेंडी टोन क्या होता है? नो यूज़ ऑफ कंजक्शन इन ए सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में कंजक्शन का यूज़ नहीं होता. ए डाइम, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, यहाँ आप देख सकते हैं कोमा लगाया गया है पर कंजक्शन कोई भी यूज़ नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे एसेंडी टोन लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है. So let us come to the stanza number 3, last stanza of the poem. In a world of possessions, possessions means ownership. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. External का meaning है without feeling. He is learning well behind his desperate. Desperate का meaning hopeless eyes. The epistemology. Epistemology का meaning knowledge of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days. How to stand up. Let us see the explanation of stanza 3. Here the poet says that the boy has to learn that, बच्चों को सीखना पड़ेगा. In this materialistic world, ये जो भौतिकवादी वाली दुनिया है, ये जो पैसे वाली दुनिया है, many of his belongings will be lost. belongings में उसकी चीज़ें, उसकी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं.
ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज इज बिलोंगिंग्स। यहाँ पोइट ने जो है बॉल को पर्सोनिफाई किया है, उसको मानवीकरण अलंकार दिया है, बिलोंगिंग बताया है उसको। बीट द वर्ल्डली थिंग्स और द रिलेशनशिप ही इज़ इन पोजेशन ऑफ। क्या कहा है कि जितने भी वर्ल्डली थिंग्स है, दुनिया की जो चीज़ें हैं या उसके जो रिलेशनशिप है, हो सकता है एक दिन वो खो जाएं। सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न, कि बच्चों को सीखना पड़ेगा। विदाउट देम नो मैटर वॉट, ये उनसे कुछ नहीं होता है एक बार खो जाने पर। ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम, कोई भी इंसान उन चीज़ों को वापस नहीं खरीद सकता है। द पोइट सेड सो, और पोइट ने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कांट बाय यू एवरीथिंग, कि मनी जो है आपको हर एक चीज़ नहीं दे सकती। इफ़ इट डज बाय यू सम मेटेरियलिस्टिक थिंग, एक मनी जो है आपको भौतिक वाली चीज़ें तो दे सकती है, स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, पर जो हमारा जो रिलेशन होता है उन चीज़ों के साथ, जो हमारी जो अटैचमेंट होती है, वो चीज़ें नहीं खरीद सकती। ही सेज दैट द बॉय इज़ लर्निंग, बच्चा तो सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स, कैसे फिर से हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए चीज़ों को खो जाने के बाद। दिस मीन्स दैट द बॉय इज़ ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, बच्चा जो है जीवन का जो है सच्चाई को सीख रहा है। विच स्टेट्स दैट, जो ये कहती हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ, कि आपको जीवन के दुखों को सहन करना चाहिए, एंड स्टैंड अप अगेन, और फिर से सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दिस इज़ द ट्रूथ, ये एक सच्चाई है, विच एवरी वन हैज़ टू लर्न इन हिज और हर लाइफ, जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में सीखनी पड़ती है। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ, ये हार्श ट्रूथ है, सच्चाई है, हम कैसे फिर से स्टैंड हो जाएं ओल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ के, जीवन के जो कठोर दुख है उनके प्रति। दैट एवरी वन हैज़ टू बेयर, ये हर एक को इंसान को बेयर करना ही पड़ता है, सहन करना ही पड़ता है एक दिन। Now students, let us see the literary devices. First of all, alliteration है, use of sound B at the starting of two consecutive words. Buy is a ball back, यहाँ देख सकते हैं बैक की जो साउंड है रिपीट हुई है। Assonance, जहाँ वोबल की साउंड रिपीट होती है, use of vowel sound E जो है यहाँ पे रिपीट हुई है। Is learning, well behind, is desperate eyes, यहाँ पे देख सकते हैं सब में E की साउंड रिपीट हुई है। रिपीटिशन, बोल वर्ड जो है रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये पोइम जो है कवर होती है, और आपको जो है होमवर्क क्या करना है इस पोइम के अंदर, वही आपकी जो फुल मार्क्स की बुक है उसके पीछे जो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट दिए हैं, 2 दिए होंगे, आपको वो कंप्लीट करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। हैव अ नाइस डे।